Hello, Namaste, and let me welcome you to our series From Passion to Profession. So, let me introduce you to the very first guest of the series. This is Mr. Jayesh Joshi. हेलो एवरीवन। So, without wasting any more time, let's get to the interview. हेलो जय भाई कैसे हैं आप पहले बहुत बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया दिस इज आवर फर्स्ट पॉडकास्ट सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस फॉर जॉइनिंग दिस जर्नी थैंक यू। Wait, but I didn't even tell you why this series was even created. Honestly, tell me, how many of you are where you imagined yourself to be and are not stuck in professions that you never intend on choosing? Well, if that made you think, then you will have a lot to take away from this podcast. Continue watching and I hope you enjoy it. Before I tell anything about you, आप please अपना introduction दीजिए. सो मेरा नाम जयेश है। मैं दरबुका और जेम्बे प्ले करता हूँ। तो मोस्टली दरबुका जब प्ले करता हूँ तो प्रॉपर अरबिक स्टाइल में प्ले करता हूँ, जहाँ पे प्रॉपर बेली डांसर के साथ कोलेब्रेशंस मैंने बहुत सारे किए हैं। उसके बाद जेम्बे में प्ले करता हूँ, तो जेम्बे में अपना एक गोवा ड्रम सर्कल कम्युनिटी है, जहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग आते हैं, करेंट होते हैं। और ट्यूसडे को, कभी सैटरडे संडे हम लोग ड्रम सर्कल करते हैं आरम्बोल में, कभी अंजुना, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे। इस तरीके से वो ड्रम सर्कल होता है, जहाँ पे हम लोग लोगों को सिखाते भी है कि कैसे ड्रम्स प्ले करना है। एक बेसिक नॉलेज होता है वहाँ पे। तो इस तरह से हम एक एनर्जी कोशिश करते हैं कि एनर्जी बिल्डअप करें, एक अच्छा समा बांधने की कोशिश करते हैं। और लाइक I like music, I love music, and this is my passion. So I'm following my passion only. That's great to hear. Yeah. So, how did you start it? Or, like you love instruments, so Yes. how did you start the very beginning part? Yeah, so it's very beginning from childhood. Always I like to play the instruments. In the school we play on the bench, Yes, yes. so we do like these things. But after that we like working. So my like music hobby is nothing is there happening. Yeah, right. But after some time I like too much issues in the like workplace here there, so always I wanted to do something. Then I would think, okay, I need to buy some instrument. And there is a one more story. So in the old time, that time we have some Nokia phones, like Symbian's Yeah, phone. right, right. That time I saw one video of the one belly dancer. Her name is Shahzad. So I saw that video and I liked that video because she's dancing is very amazing. She catching the every beat of the instrument. That time I didn't know the instrument name like darbuka. Yeah. Then after some time I realized that okay, I saved that video and always I try to find the instrument name. What is the instrument play behind that instrument? What is the instrument? Then I search that instrument. After like 5 years, I buy that instrument. It take 5 years, 4 to 5 years to buy the instrument because it's not the easy to take the instrument. Right, So always we think, okay, what will we do? Because instrument also cost like 15-20,000 instrument. So we thought, okay, इंस्ट्रूमेंट लेके क्या करेंगे अपन। तो बाद में मैंने सोचा कि चलो बेटर है कि ले लेते हैं, जो भी अपना हॉबी है कंप्लीट करेंगे। तो वो हिसाब से फिर मैंने इंस्ट्रूमेंट लिया, दरबुका से स्टार्ट किया, फिर यूट्यूब से अच्छे से सीखा मैंने। और जब मैंने इंस्ट्रूमेंट लिया था दरबुका, तब मेरा था कि एक दिन में शहजाद जो है बेल डांसर, मैं उसको इंडिया में बुलाऊंगा या तो फिर मैं वहाँ पे जाके परफॉर्म करूंगा। तो ये उस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट किया था और दरबुका लेके मैंने शुरुआत किया एक इंडिया में, और एक बेल डांस कम्युनिटी में एक अच्छा अपना नाम है। और एक चीज ऐसी भी जो सोचा था कि शहजाद को यहाँ पे बुलाना, तो शहजाद इंडिया गोवा में आके गई आपके साथ कोलैब। हाँ, कोलैब नहीं हुआ और किसी ने उनको बुलाया था, लेकिन जो ड्रीम था उसको इंडिया में यहाँ तक लेके आना, तो वो तो आ तो गई ना, क्योंकि उस टाइम पे मैंने मैनिफेस्ट किया था। सो जैसे भी वो आ गई यहाँ पे, तो मुझे मतलब कुछ एफर्ट नहीं, सिर्फ मेरा काम के ऊपर मुझे मेहनत करना पड़ा। लेकिन बोला ना, यूनिवर्स हेल्प अस टू ब्रिंग योर ड्रीम, कंप्लीट योर ड्रीम्स। सो इस तरह से वो एक चीज मेरे को जब हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जब मैंने सोचा था, और मैं सबको बोल रहा था कि एक दिन मैं उसको इंडिया में लाऊंगा या तो मैं उसको मिलने जाऊंगा। तो हमारा कोलैबोरेशन अभी बाकी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब कोलैबोरेशन होगा ना तो वर्ल्ड देखेगा, तो उस तरह से कोलैबोरेशन करना है। इसके लिए थोड़ा सा मैं रुक गया। ओके, वी होप वी सी दैट कोलैबोरेशन सून। यस यस, श्योर श्योर। और उसके बाद फिर लॉकडाउन, फिर मैं गोवा आ गया। फिर गोवा में मैंने गोवा ड्रम सर्कल स्टार्ट किया है कम्युनिटी। तो इस तरह से मेरा जर्नी अभी यहाँ है। गोवा से पहले आप कहाँ रह रहे थे? और गोवा से पहले मैं मुंबई थाने में था। तो बेसिकली वहाँ पे मेरा एक प्रिंटिंग कंपनी था, जहाँ पे जो फ्लैक्स प्रिंटिंग मशीन्स है, तो उसका मैं सेल्स सर्विसेज कर रहा था। तो मेरा खुद का कंपनी था। लेकिन जैसे ही दरबुका लिया तो बस एक ही एम था कि बस चलो, एक ड्रीम लेके चल रहा हूँ, एक कि इंडिया में, एक वर्ल्ड में एज ए म्यूजिशियन दरबुका प्लेयर एक नाम बनाना। तो उसकी एक जर्नी है अभी, तो उसी जर्नी में आगे बढ़ रहा है। That's great. Yes. आपको पता है, जो भी गोवा के बारे में सर्च करता है, हाँ. जो भी ऑफ बीट प्लेसेस सर्च करता है, हाँ.
उसको आपका चैनल ज़रूर दिखता है। एंड वो एक कम्युनिटी नाम बन चुका है कि इफ़ यू आर एवर कमिंग टू मैंड्रिम आरंबोल साइड, तो आपका वो प्लान ऐसे लोग करते हैं कि यू नो दे कैन जॉइन यू समडे। यस यस, बहुत सी बार जैसे आपने बोला कि लोग आने से पहले फोन करते हैं, कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, हम लोग इस डेट पे आ रहे हैं, हाँ, क्या इस डेट पे ड्रम सर्कल है। राइट। तो अभी कैसे होगी कि रेगुलर ड्रम सर्कल का ऑर्गेनाइज करना भी बहुत मुश्किल होता है, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू वी कैन ऑर्गेनाइज, सो स्टिल वी ट्राई टू ऑर्गेनाइज व्हेन वी कैन अवेलेबल वी कैन डू दिस, so mostly Tuesday, Saturday, Sunday we try to organize. सो अगर कोई बिल्कुल नया है, स्टार्ट हाँ, कर रहा है, उसके पास इंस्ट्रूमेंट्स का, ही और शी लव्स इंस्ट्रूमेंट्स, ओके तो उसको आप क्या कहेंगे कि लाइक हाउ कैन दे स्टार्ट? ओके, अगर आप कोई भी बंदा है जिसको म्यूजिक पसंद है, तो देखो अभी बहुत सारे प्लेसेस है जहाँ पे ड्रम सर्कल एक्टिविटी चालू है। मुंबई हो गया, पूना हो गया, हैदराबाद हो गया, हर स्टेट में कोई ना कुछ कर रहा है, क्योंकि ड्रम सर्कल ऐसा कि बहुत बूमिंग चल रहा है अभी। तो वहाँ पे जाके वो अटेंड कर सकते हैं, या तो फिर अपना बस टेबल है, टेबल के ऊपर शुरुआत कर दीजिए। फिर आपको कोई ना कोई टीचर ढूंढना ही है, आपको टीचर भी मिल जाएगा, अभी नहीं तो यूट्यूब से भी आप सीख सकते हैं, जो भी मैं सीखा हूँ यूट्यूब से सीखा हूँ, तो आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं वैसे, और या तो आपके सिटी में भी आपको टीचर्स मिल जाएंगे। जैसे कि स्टार्ट स्मॉल जो है उससे स्टार्ट करो, स्टार्ट बट यू हैव करो टू बस, स्टार्ट इट। यस, जो है उससे स्टार्ट करो, जैसे मैं बोला ना कि आप हाँ, अपना टेबल के ऊपर बजा सकते हैं, लैप्स के ऊपर बजा सकते हैं, हाँ, बीट अभी यस, से। बीट पकड़ के चल सकते हो, हाँ, सिंपल। तो उस तरह से वो, जैसे आप बजाना शुरू करोगे कुछ भी, तो ऑटोमेटिकली आपका हॉबी बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा, धीरे धीरे आप इंस्ट्रूमेंट की तरफ जाओगे, और जब बोलते ना कि दिल से चाहोगे तो हाँ, पूरी कायनात भी जुड़ जाती है। मिल जाएगी आपको। तो बस वही है कि शुरुआत करो, पहला कदम रखो, दूसरा कदम अपने आप आगे चले जाएगा, इस तरीके अभी आई वांट टू आस्क यू, व्हाट इज म्यूजिक फॉर यू? से। म्यूजिक इज लाइफ फॉर मी, म्यूजिक इज हैप्पीनेस फॉर मी, sometimes sadness also. It's like feel. So always when I play music, I feel happy. I feel complete. So yeah, this is music. आप हमको प्ले करके दिखा सकते हैं? Yes, sure. So I can दारबुक play darbuka. दारबुका एंड जेम्बे में डिफरेंस क्या है? Yes, I can tell you. So this is the darbuka. Okay. So ये इंस्ट्रूमेंट मिडल ईस्ट कंट्रीज में ज़्यादातर यूज होता है, जैसे आप इजिप्ट देखोगे, इंडोनेशिया, टर्की, उस साइड में ज़्यादा मोस्टली प्ले किया जाता है। उसके बाद बेली डांस में भी बहुत सारा यूज होता है इसका। तो इसमें क्या फ़र्क है साइज का, देखो आप, वो जेम्बे बड़ा है, ये छोटा है। जेम्बे, जेम्बे, दिस इज जेम्बे, यस। तो इसमें साइज का भी डिफरेंट है, देखो अभी इसका साइज है 8 इंच, 8.5 इंच, 9 इंच आते हैं दरबुकास में, और ये एल्यूमिनियम का है, और ये लकड़ी का है। ठीक है, इसमें गोट स्किन है, इसमें सिंथेटिक स्किन है, तो ओके। स्किन का भी डिफरेंस है। उसके बाद अभी तो हो गया लुक और बॉडी का डिफरेंस, उसके बाद साउंड्स का भी डिफरेंट होता है। अभी साउंड में देखो, इसमें हाई पिच साउंड है, इसमें थोड़ा लो पिच साउंड आएगा, देखो। ओके, तो ये डिफरेंस है, साउंड्स के भी डिफरेंट है। ठीक है, पहले अभी इसका हम करते हैं, फिर उसके बाद उसके पर भी जाएंगे। तो ये अरबिक इंस्ट्रूमेंट बेली डांस इसमें, तो इसमें 3 साउंड होते हैं, बेस, इसमें है धूम, ता और का, ओके, और जेम्बे में बेस, स्लैप, टोन। तो ये 3 साउंड दोनों में भी है। जब 3 साउंड एक साथ आते हैं तो हम लोग रिदम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इसका एक डेमो कर देते हैं। तो या इस तरीके से ये इंस्ट्रूमेंट बजता है, उसका प्लेइंग पोजीशन भी इस तरीके से होता है। ओके। तो ये है दरबुका, सो वी कैन ट्राई जेम्बे। यस, सो जेम्बे, ये है जेम्बे, वुडन एंड गोट स्किन। सो
ये इंस्ट्रूमेंट बिलोंग करता है अफ्रीका से। जैसे अफ्रीका में डिफरेंट डिफरेंट कंट्री है, माली है, गियाना, तो वहाँ पे ये लोग इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, सेलिब्रेशंस करते हैं, इसके साथ डांसिंग, वो सब चीज़ें होता है। इसमें भी बेस, स्लैप और टोन, बेसिक साउंड। अभी हम इसको प्ले करते हैं, इसका साउंड सुनते हैं। दिस इज द साउंड ऑफ द djembe। बहुत बहुत अच्छा था ये वाला, दोनों साउंड्स। यस, दोनों में बहुत सारा कल्चरल डिफरेंस भी है और साउंड डिफरेंस भी है। यस, दिस इज द djembe and darbuka। Okay. So, like, what do you think? What is stopping anybody from pursuing what they are passionate about? Like, आपने जब छोड़ा था, उस टाइम पे भी कुछ तो ऐसा सोचा होगा ना, what if this works, what if this doesn't work? तो वो ट्रांजिशन कैसे आया आपका? अभी जब मैं स्टार्टिंग में, जैसे मैंने बोला, एज अ हॉबी, क्योंकि देखो जब हम जॉब करते हैं, जो भी कर रहे हैं, तो माइंड में एक ही चलता है कि पैसा कमाना पैसा है। कमाना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज वही है, गाड़ी आदमी का अटकता है कि पैसा कमाना है, लाइफ को सेट करना है। पर क्या होता है, उस चक्कर में आदमी फंस जाता है और उस चक्कर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरा भी वही था कि क्लाइंट्स के प्रेशर आ रहे हैं, ये हो रहा है, रात को 2 बजे कॉल आते हैं। जैसे सर्विस में, जैसे प्रिंटिंग मशीन चल रहे हैं, रात को किसी इशू आया तो रात को फोन आ रहा है, शाम को फोन आ रहा है, मतलब कोई लिमिट नहीं है टाइमिंग, कभी भी कुछ भी टाइम पे आना है, अटेंड करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो चीज़ें होती थी। तो उसके बाद वही मैं थक गया था ये सब चीज़, इसलिए एज ए हॉबी मैंने लिया। फिर लोगों से भी अच्छा एक रिस्पॉन्स मिला, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे डाइवर्ट हुआ। तो इसमें कैसा है कि देखो, अब जब किसी चीज़ को चाहते हो ना, तो धीरे धीरे उस चीज़ की तरफ बढ़ सकते हो आगे, कोशिश करना पड़ेगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। जब कोशिश करोगे तो हर चीज़ आपको पॉसिबल लगती है, लेकिन जब हम सोचते कि भाई ये मेरे से पॉसिबल नहीं है, तो कभी पॉसिबल नहीं। अगर होगा भी तो भी आप कर नहीं पाते, क्योंकि आपके दिमाग में आपने वो बना लिया है कि भाई ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन आप सोचते हैं हाँ चलो हो जाएगा, तो एक कदम आप बढ़ा सकते हो। और जब एक कदम बढ़ा, तो मैंने पहले भी बोला कि ऑटोमेटिकली यू कैन फाइंड द वे। हाँ, तो इजीली मतलब रास्ता मिल जाता है आपको इस तरीके से। तो मेरा भी वही सी था कि मैं पहले सोच रहा था कि मैंने बोला ना 4 साल लगाया मैंने इंस्ट्रूमेंट लेने के लिए। फिर उसके बाद वो कन्वर्जन हुआ कि चलो भाई अभी इसी में करते, जो भी होगा देखा जाएगा। क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में कोई प्रॉपर अरबिक स्टाइल में दरबुका नहीं प्ले कर रहा था, जो भी कर रहे थे नॉर्मल ऐसे पैरों के बीच में रखे। अभी ट्रेंड चेंज हो गया है, तो अभी लोग साइड में पकड़ रहे हैं, तो पहले लोग ऐसे ही प्ले कर रहे थे। तो उस टाइम में देखा अभी यहाँ पे एक यूनिक चांस है कि इन फ्यूचर यहाँ पे अच्छा एक मौका है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंपटीशन नहीं है दरबुका में। उस टाइम पे उस पर कोई नहीं बजा रहा था, जो बजा रहे तो नॉर्मली ऐसे ही करके जम्बे की तरह उसका यूज कर रहे थे। अभी चेंज हो गया, लेकिन उस टाइम पे मुझे लगा कि हाँ ये सही मौका है। तो उस टाइम पे मैं घुस गया, रेगुलर प्रैक्टिस। और म्यूजिक में हमेशा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट। जितना प्रैक्टिस करोगे आप, उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, फोकस मिलेगा। अरे करियर की तरह भी आप इसको देख सकते हो। अगर आप अच्छे से एक परफॉर्मर बन गए, तो बहुत सारी जगह पे परफॉर्मिंग करके भी आप अर्निंग कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि म्यूजिक में कुछ है नहीं, म्यूजिक में भी पैसा भी कमा सकते हो, प्लस शांति। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि शांति है, यहाँ पे आपको शांति मिलेगा। ये एक सुकून है कि ऐसा कोई मेंटली प्रेशर नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। जब भी आप परफॉर्म कर रहे हो तो आप यू आर द हैप्पी पर्सन व्हेन यू डू योर वर्क। नॉर्मली हम जो भी वर्क करते हैं हम लोग टेंशन नहीं होते, परेशानी होते हैं, लेकिन म्यूजिक ऐसा चीज़ है जो आपको पसंद है, अगर आप वो चीज़ करोगे तो आप कभी दुखी नहीं रहोगे, हमेशा हैप्पी। तो ये भी एक बेनिफिट है। इस वजह से भी थोड़ा सा म्यूजिक अपनी ओर खींचता है, एक करियर अपॉर्चुनिटी भी बोल सकते हैं। ग्रेट। जैसे someone who wants to start now in 2026, हाँ, तो स्टार्टिंग में कितना वो एक्सपेक्ट कर सकता है कमाने का वर्सेस द एक्सपेंडिचर, तो उसको बैलेंस करके कैसे चल सकता है? देखो अभी स्टार्टिंग में आप बोलोगे मैं आज एक सीखा 1 महीने का क्लास किया और मैं कमाने लगूंगा, नहीं, नॉट पॉसिबल। ये चीज़ नहीं हो सकता है। म्यूजिक नीड्स पेशेंस एंड एक्सीलेंस। अगर आपने 1 महीने में उतना एक्सीलेंस अचीव कर लिया तो आप कमा सकते हो, लेकिन अगर नहीं है, और डिपेंड है आपके खर्चे भी कितने हैं, ये भी मैटर करता है कि आपके खर्चे कितने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपके खर्चे बहुत सारे हैं, शौक बहुत सारे हैं, तो फिर आपको वो नहीं, आप
बैलेंस कर पाओगे। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो डोंट, आपका जॉब क्विट नहीं करना है आपको। जॉब के साथ पहले म्यूजिक को सीखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, म्यूजिक को सीख के फिर बाद में आपको धीरे धीरे कन्वर्ट होना है। जो भी है, आपको सिंगिंग लग रहा है, ड्रमिंग है, परकशन है, जो भी है उसको फिर अच्छे टीचर के साथ जाके सीखो। फिर उसके बाद आप स्लोली स्लोली इसका देखो कि आप कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, जब आप प्ले कर रहे हो लोगों का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, लोगों को कैसे लग रहा है, फिर उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो। कि ऐसा नहीं कि आपने सीखा एक महीना, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो आप अगर ऐसा करोगे तो जल्द से जल्द टाइटेनिक डूब जाएगा। So yeah, you can take your time if you want to be success in the music. So you need to take your time, and then you can take the decision to leave the job. But before I said no. So first आपका जॉब भी कीजिए, और जब आप म्यूजिक प्ले करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक शांति मिलेगा ना, तो आपको जॉब में भी आप हेल्प मिलेगा उस चीज का, क्योंकि आप कुछ तो आपका पसंद का कर रहे हो, तो इट विल बी टू मच बेनिफिट So, इफ यू लर्न द म्यूजिक। so finally start इसको करो as a side hustle यस, and give it time, and the moment you are set in one side, one business, then you can, decide on dropping your job and then continuing with कंटिन्यू, this. राइट। तो अभी next goal क्या है आपका? नेक्स्ट गोल यही है कि हर स्टेट में जाके एक परफॉर्म करना है, और एक इंडिया में और एक वर्ल्ड में एज ए दरबुकर प्लेयर एक नाम बनाना है। तो अभी उसी की जर्नी का चल रहा है। तो आने वाले समय में कुछ मैं दरबुका वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने का प्लान कर रहा हूँ कि हर स्टेट में जाके। सो यस, अभी ये प्लान चल रहा है। कौन सी ऐसी चीज थी जो आपने लाइक अनएक्सपेक्टेड चीज जिसने आपको हेल्प करा हो अपनी करियर में, कोई ऐसी हैबिट, कोई ऐसी चीज जिसने आपको अनएक्सपेक्टेड तरीके से हेल्प करा हो? जैसे मैं बोल रहा था कि मैं बहुत पहले परेशान था, कि बहुत थक गया था कि वही सब लाइफ में घिटे पिटे हो, सुबह उठ रहा हो, जा रहा हो, शाम को रहा, खाना घर से रहा, सुबह वापस वही सेम लूप चल रहा था। तो उसके बाद जैसे दरबुका आया तो बहुत सारा, बोले ना, उस टाइम पे मेंटली भी बहुत डिस्टर्ब था मैं, कि समझ भी नहीं आ रहा कि लाइफ में चल क्या रहा है, मैं कर क्या रहा हूँ, क्या हो क्या रहा है। लेकिन जैसे दरबुका आया, फिर एक बोले ना, एक अंदर से खुशी मिलना स्टार्ट हुआ, और पूरा एक्सपीरियंस चेंज हुआ। मतलब जैसे बच्चे रहते तब अपन पूरा अलग रहता है, एक एज आता है, उसके बाद वही। तो जैसे समझो कि अंदर का बच्चा मर गया था सब ये चीजें देख देख के। फिर जैसे दरबुका लिया तो बोलो ना, बच्चा वापस चलने लगा, रेंगने लगा। तो वो एक चीज वापस एक बहुत बड़ा मतलब चेंज बोल सकते हो आप। Yes. अगर स्टार्ट ऑफ द करियर में आपको क्या लगता है, कोई एक चीज जो पता होती तो ये जर्नी बहुत इजीली आगे बढ़ जाती? मोस्टली क्या होता है कि अपने इंडिया में कोई अच्छे टीचर्स नहीं है दरबुका के। अगर वो अच्छे टीचर्स मुझे यहाँ पे इंडिया में मिलते हैं तो मेरा अभी तक मतलब बहुत जर्नी चेंज हो जाता था यहाँ आगे तक। एक गाइडेंस गाइडेंस एक मिल जाता था। उस टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ, यूट्यूब पे देख रहा हूँ। उस टाइम पे मुझे स्ट्रगल भी ये था कि अलग लैंग्वेज में है, तो वो लैंग्वेज भी डिकोड करना है, फिर उसको समझना है, फिर उसके बाद उसको प्ले करना है, फिर प्ले करने के बाद अपने वीडियोस को जज करना है, मैंने कहाँ पे गलती किया, क्या किया, फिर उसको सुधारना है। तो मतलब एक लंबा प्रोसेस हो रहा था। अभी जैसे कोई एक रिदम है, अगर मैं सिखाना चाहूँ तो आपको एक घंटे में, 1.5 घंटे में आपको एक रिदम सिखा सकता हूँ। लेकिन वही एक रिदम सीखने के लिए मुझे 1 महीना 2 महीने लगा, जो अभी मैं 1 घंटे में, 1.5 घंटे में किसी को भी सिखा सकता हूँ। लेकिन मुझे 1.5 महीना तो लगा, 1.5 2 महीने लगे सिर्फ एक रिदम को समझने में, सीखने में। तो एक तो ये चीज हम चीज ये है। भी डिकोड कर सकते हैं कि अगर सोचा है तो वो पॉसिबल है, यस, कुछ भी पॉसिबल है। तो लैंग्वेज का इशू प्लस नो टीचर्स, नो गाइडेंस, उसके बाद भी आपने यू सेट योर नेम, हाँ, तो एनीथिंग इज पॉसिबल फॉर एनीबडी जो भी इंस्ट्रूमेंट में या फिर किसी और फील्ड में जो भी शिफ्ट करना चाह रहे हैं। यस। वो हमेशा बोलते हैं ना, इफ यू हैव द व्हाट, इफ द विल यू हाँ, कैन। find the way. Yeah, that's, if you have the will. So always when I feel something I can't see anything, then I say to myself, okay, if you have will, you can find something, and I'll trust on yourself, and then you'll find always the way. So it's a lot of time when I came to Goa, I have some savings. उसके बाद मेरा सेविंग्स खत्म हो गया, तो बोला ना डाउन पीरियड चल रहा था, लेकिन उसके बाद भी मैंने सोचा चलो आएगा, अच्छा होगा। तो जस्ट फोकस करता रहा अपने काम पे ऊपर, एक ट्रस्ट रखा, प्रैक्टिस अच्छे से करता रहा, परफॉर्म करते रहा, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली जो सिचुएशन था टफ टाइम वो भी निकल गया। सो वही बोल रहा हूँ, मतलब ये लाइफ में मैंने चीज़ देखी कि जब भी कोई विश कर रहे हो आप तो कंप्लीट होती है वो, लेकिन आपको मेहनत करना नहीं छोड़ना है। राइट। जो भी फील्ड है आपका, आपको मेहनत करना है, मेहनत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उस टाइम कोई लायबिलिटीज थी आपके ऊपर, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या फिर ऐसा कि फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत लोगों को होती हैं, हाँ, नहीं पेरेंट्स इतना, है, किड्स है, हाँ हाँ, ऐसा?
नहीं, अभी उस टाइम पे तो ऐसा कुछ मेरे साथ कुछ नहीं, क्योंकि अभी मैंने उससे शादी नहीं किया था तक। अच्छा। तो वो मतलब अगर शादी हो जाता तो मैं ये सब नहीं कर पाता, तो शायद अभी भी कोई कंपनी में जॉब करता है तो फिर मेरा वही कंपनी रनिंग करता रहता था। तो उस वजह से मैंने वो शादी का डिसीजन ही नहीं लिया, कि शादी का मुझे पता था कि अगर शादी करूंगा तो फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा और डिफिकल्ट हो जाता है कि दो लोगों को साथ लेके चलना है। अगर मैं किसी को लेके आ रहा हूँ साथ में, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई मेरे को ये करना है, तो मुझे वो चीज़ भी सोचना है। तो इस हिसाब से वो मैंने वो नहीं लिया, और जस्ट अपने ऊपर फोकस करके एक डिसीजन बोलते ना। तो कैसा हाँ। अभी, सही डिसीजन था कि गलत डिसीजन लास्ट में, आपको क्या लगता है? नहीं, मैं इस डिसीजन पे कभी, मैं हमेशा यही सोचता कि जो भी करना है ना अपने मन से करो, कभी किसी को मतलब ये नहीं ताना नहीं देना चाहिए राइट। कि मैं अभी हमेशा जो भी मुझे लगा मैंने हमेशा किया। जैसे मुझे कंपनी ओपन करना था, मैंने जॉब छोड़ा, मेरा कंपनी ओपन किया। मुझे बाद में ये चीज़ करने का मन किया, मैंने ये किया। तो मैंने हमेशा सोचा यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओवन लाइफ। सो मतलब जो आपको लगता है, आप कभी दूसरे को, बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि मैंने ये किया होता तो मैं ये कर सकता था, मैंने वो किया होता तो वो हो सकता था। तो मुझे वो चीज़ में नहीं जीना है। जो मुझे लग रहा है ना मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है मैं करके देखता हूँ, बाकी जो होगा वो देखी जाएगी आगे। लेकिन मुझे बाद में पछताना नहीं है कि मैंने ये किया होता तो वो होगा, वो किया होता तो वो हो सकता था। तो इसके लिए मैं जो भी लगता है हमेशा डिसीजन लेते गया, अंजाम से मतलब डरा नहीं, जो भी होगा देखी जाएगी। लेकिन यही रहा कि 100% देते रहा, हमेशा कोशिश किया कि मैं मेरा 100% दूँ। तो इस मोमेंट पे कोई रिग्रेट नहीं है कोई जो रिग्रेट नहीं है, वो। यस कोई रिग्रेट नहीं। मैं वही बोला ना कि अब उल्टा मैं आज खुश हूँ कि ये चीज़ अगर मैं, जैसे आपने पहले भी सवाल पूछा था, अगर यही अगर मैं थोड़ा सा एक जैसे 20 साल या 21 साल उस टाइम पे अगर घुस जाता तो और अच्छे से और बढ़िया से कुछ कर सकता था। या तो बचपन से अगर मेरा कुछ प्रॉपर क्लासेस होते या ऐसा कुछ तालीम मिलती बचपन से, तो भी और बहुत सारा इम्प्रूव हो सकता था। तो अपने बचपन से इंस्ट्रूमेंट्स के तरफ कुछ ऐसा अट्रैक्शन था कि ये नहीं नहीं, बड़े बचपन से होकर? इंट्रोड्यूस था अट्रैक्शन, पर मतलब ऐसे कोई क्लासेस नहीं। जैसे अभी कोई शादी है तो शादी में से बैंड बज रहा है तो हम लोग जाके ऐसे देखते थे, अच्छा। तो देखते रहते। अभी भी मैं जाता हूँ कि तो शादी है बज रहा है बैंड, मैं ऐसे देखते रहता हूँ कौन कैसे बजा रहा है क्या बजा रहा है, तो वो चलते रहता है। तो इस तरह से हम लोग देखते थे। फिर ऐसे किधर बैठे तो लकड़ी आ रही, लकड़ी दो लकड़ी लिया, फिर ऐसे पत्थर पे जमीन पे बजाते रहे। अरे वो ऐसे बज रहा था रिदम, वो ऐसे बजाओ, फिर वो गाना ऐसे था तो ऐसे गाने को बजाओ, तो वो चलता रहता था। इस तरीके से हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते थे। कुछ मेरे भाई थे तो हम लोग बैठ के फिर वो चलते, एक घंटे बेस बजा रहा है, अब कुछ यूट्यूब पे वीडियो देखा रहेगा आपने, बच्चे लोग कर रहे हैं, राइट। तो वही चीज हम लोग बचपन में वही हम लोग भी करते थे। कभी पतरा लिया, डब्बा पतरे का, उसके ऊपर बजा रहे हैं, कभी जमीन के ऊपर, बस लकड़ी लेके बजाते रहो। वो हिसाब से फिर जर्नी शुरू हो गई। और मेरे एक अंकल थे, तो वो एक ढोलकी बजाते, महाराष्ट्रन ढोलकी, तो वो बजाते थे, उनको भी हमेशा देखते थे। तो कभी कभी ढोलकी मिला तो नहीं रहेंगे तो हम लोग बजाते रहते थे, ऐसा गणपति के टाइम पे, तो वो थोड़ा सा चलता रहता था ऐसे। कोई एडवाइस जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें? एडवाइस यही है, अगर आपको म्यूजिक पसंद है तो प्लीज़ इसको बजाना, सिंगिंग करना, जो भी है आपका, इसको चालू कीजिए। क्योंकि म्यूजिक ऐसी चीज़ है ना कि आपको बहुत सारी खुशी देती है, जो भी स्ट्रेस है वो निकाल देगी। तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आज के डेट में, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था कि बहुत सारी चीज़ें इधर इथल पुथल हो रही है, बहुत सारी कुछ कुछ चीज़ें हो रही है, क्योंकि लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं कि मोबाइल ऐसी चीज़ आ गई कि उसको फायदा बेनिफिट भी है और लॉसेस भी उतनी ही ये है उससे। मोबाइल को यूज करके फॉलो योर पैशन। यस, हाँ, इस मोबाइल को यूज करके फॉलो योर पैशन। मोबाइल इंटरनेट है, उसको यूज करोगे अच्छी राह पे चल सकते हो आप, बहुत कुछ सीख सकते हो। अभी जैसे आप बोल रहे कि मोबाइल से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे म्यूजिक सीखा है, बहुत सारे गैजेट बनाना भी सीखा है। जो थोड़ा मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इंटरेस्ट है, तो मैंने एक CNC राउटर भी बनाया था सिर्फ मोबाइल पे देख के। तो यूट्यूब है तो वहां से वो कोडिंग कैसे करना है, क्या करना है, वो सब आप देख के, कोडिंग भी कर? वो देख के किया जाता, अच्छा। देख के फिर उसको फिर कंप्यूटर पे, मतलब थोड़ा सा जो है ना कि पसंद पसंद था मुझे, तो मैं उसके ऊपर R&D करके मैंने CNC प्रिंटर बनाया था। एक सर्किट बनाया था जहाँ से अपन यहाँ पे से बैठ के ट्यूबलाइट बल्ब बंद चालू कर सकते हैं। तो उस तरीके से भी मैंने कुछ चीज़ों के ऊपर काम किया। अभी तो ChatGPT भी आ गया है, और तो ये और इजी हो गया है। पहले तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो सर्च करने पड़ते थे, डायग्रामा ढूंढना है तो और गूगल पे जाओ। अभी ऐसा नहीं, ChatGPT पे डाल दिया तो आपको डायग्रामा भी मिल जाता है, कोई भी चीज़ आपको फटक से मिल जाएगा। आपको सिंगिंग करना है, डाल दो तो वो आपको लेसन दे देगा, आपको ये से गाना है, ये गाना है। उसके बाद आप यूट्यूब पे जाके और उसके ऊपर रिसर्च करके कोई, मतलब इस तरह से आप डेवलप कर सकते हो म्यूजिक को आपके। तो ऐसा मतलब आज का डेट में ऐसा नहीं है कि आपको पैशन को फॉलो नहीं कर सकते हो। इज वेरी इजी, सिंपल हो गया कि पैशन को फॉलो करना है। इकिगाई पता है आपको क्या है? हाँ, इकिगाई?
इकिगाई, यस आई द यस। जापानीज वर्ड है, इसका हम्म। मतलब है द रीजन फॉर यू टू वेक अप एवरी सिंगल डे। हाँ। तो अब कुछ दिन पहले से मैं अपना थोड़ा बताती हूँ कि आई वॉजन एबल टू फाइंड माई इकिगाई। तो जब मैंने आपकी पहली वर्कशॉप जिस दिन अटेंड करी थी, हाँ उस हाँ। दिन का मैं स्टोरी बताती हूँ अच्छा। कि उस दिन मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल डे था वो। हाँ सो व्हेन आई सैट विद द जेम्बे हाँ एंड जब आपकी मतलब वर्कशॉप में बजाना ऐसा स्टार्ट करा, हाँ फॉर 1-1.5 आवर जितने भी ड्यूरेशन की वर्कशॉप थी, आई वॉज इन दैट मोमेंट। तो एक ऐसा है कि इंस्ट्रूमेंट आपको वो पर्टिकुलर चीज़ों में डाल देता है, यू डोंट फील डिस्ट्रैक्टेड। तो मैं कहूँगी उसके बाद से मेरा मतलब वो इकिगाई मेरा तो खो गया था। हाँ। उसके बाद से आई आई वर्कड अगेन कि कुछ ना कुछ अब करना है दोबारा से। तो इंस्ट्रूमेंट्स ने मुझे भी वो एक चीज़ दी है कि यू फाइंड योर वे। आपके लिए आपका इकिगाई क्या है? जिससे मैंने बोला ना, ये दरबुका, हाँ, दरबुका ही है मेरे लिए, क्योंकि दरबुका आने के बाद पूरा लाइफ बदल गया। 360 डिग्री चेंज हो गया। Right. कि जहाँ पे पूरा मैं स्ट्रेस के साथ जी रहा था, हाँ, बहुत सारा प्रेशर, ये वो, थिंकिंग लेवल ऑफ बहुत ज़्यादा था। तो उसके बाद दरबुक आने के बाद पूरा लाइफ स्टाइल चेंज। और उसके बाद हमेशा सोचता था मैं कि 30 के बाद मेरे को काम नहीं करना है। जैसे दरबुक आया तो वो भी कंप्लीट हो गया। अभी आप भी देखना चाहेगा तो मैं काम ही नहीं कर रहा हूँ, हाँ, जा रहा हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ, हाँ, मजे से लाइफ जी मजे रहा वाली हूँ। लाइफ हाँ, चल तो रही ऐसा है। नहीं कि ऑफिस में 9 to 8। अभी भी एक फ्रेंड था, तो अभी उसका भी लास्ट टाइम पूरा 15-20 दिन है, तो वो पूछ रहा था अब तुमको जॉब वगैरह करना है क्या कुछ, बोला नहीं, अभी मेरे से जॉब तो हो नहीं पाएगा। कि अभी ऑलरेडी ये एक लाइफ का हैबिट हो हाँ, गया और यहाँ पे बहुत अच्छे से चल रहा है, सब कुछ बढ़िया से चल रहा है। और जो मन पसंद काम करने को मिल रहा है, जो मुझे पसंद है वो करने को मिल रहा है। म्यूजिक ऐसा चीज है कि बहुत बड़ा चीज है, ये समंदर ही है, तो जितना आप अंदर जाओगे उतना अंदर ही गहराई है। right. तो ये खत्म नहीं होगा। बट आप अगर कुछ ऐसा ऐड कराना चाहिए जो आपको लगता हम्म। है बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ का, इस पैशनेट लोगों के लिए, कुछ भी। अच्छा अच्छा, उस तरीके से अभी ऐसे तो अभी फिलहाल तो मेरे दिमाग में से कुछ नहीं आ रहा। वही है कि बस अभी पैशन को फॉलो करो, इतना ही बोल सकते हैं कि आप अपने पैशन को फॉलो करो जो भी है। क्योंकि जब अपने पैशन को फॉलो करो तो जैसे भी अपना जो भी स्ट्रेस है वो रिलीफ करने में हेल्प करता है। राइट। जो भी तकलीफ है उससे निकलने को आपको हेल्प करेगा। जैसे आपने बोला कि जैसे फर्स्ट बार ड्रमिंग किया, थोड़े से पिक्चर्स क्लियर हुए, तो वही है कि जो भी आपका पैशन है, अभी जरूरी नहीं होगा कि ये म्यूजिक ही हो। बहुत सारे लोगों को राइडिंग पसंद है, किसी को कुछ अलग अलग प्लेसेस पे विजिट करना पसंद है। हर एक का पैशन अलग है, तो आपके जब पैशन को फॉलो करोगे ना, आपका माइंड और हार्ट ओपन होना शुरू हो जाता है। राइट, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉलो योर पैशन, लव योर पैशन इज इम्पोर्टेंट थिंग। अगर आप अपने पैशन को प्यार नहीं करोगे तो धीरे धीरे ना, जैसे बोला ना एक बच्चा होता है अपने अंदर, हाँ, हाँ। वो धीरे धीरे खत्म हो यार। जब जिस दिन बच्चा खत्म होता है ना, तो बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो वही है, तो बच्चे को मरने मत देना अपने अंदर के। थैंक यू सो मच फ्रॉम आवर साइड। आपके अगर किसी को कांटेक्ट करना है आरम बोल या फिर इस साइड अगर वो आ रहे हैं, हाउ कैन दे कांटेक्ट यू? So they can search Goa Drum Circle on the Instagram. वी विल आल्सो पुट योर Link. Instagram handle in the description box. Yes. Okay. Okay. Thank you so much taking Thank this you so interview, much. and best of luck for your first interview. Podcast. Podcast. Sorry. Best of luck for your first podcast, Yes. and hope this you can make more podcasts like this, and you can like very famous girl, and Thank it you will so like much. nice Thank you so to much. see you again next podcast. Yes. We can with do it a- together. When you get famous, don't forget me. No, no, I will not. So yes, the best of luck and best wishes from my side. Thank you so Yes, much. thank you. All the best from our side Yes. as well. Thank Thank you you. so much. Yeah.